Good evening and welcome everyone to this session on Indian polity in which we are going to cover judiciary as a topic. So yesterday we saw the things until removal of judges. The exact process for removal of judges is something which we are going to cover today. Let's do a recap of the things that we saw in the last class yesterday. गुड इवनिंग एवरीवन। जो कल तक जो चीजें देखी थी वो उनको एक बार क्विकली देखते हैं कि क्या क्या हमने कल कवर किया था। पार्ट 5 आर्टिकल 124 अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, कंसल्टेशन मींस कॉन्करेंस, एनजेएसी एक्ट रिलेटेड हमने डिस्कशन करा था। CJI is usually the senior most judge of the Supreme Court. This convention was violated in 1973, 1977. मैंने आपको बैकग्राउंड दिया एनजेएसी एक्ट को क्यों जुडिशरी ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, नल एंड वॉइड, राइट? दीज थिंग्स वर देयर। देन बिफोर द प्रेसिडेंट और अ जज हैज टू टेक द ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ बाय हिम, right, to bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to uphold the sovereignty and integrity of India, to duly and faithfully and to the best of his ability, knowledge and judgment perform the duties of office without fear or favor. Judges of the Supreme Court, they retire at the age of 65 years. This also we saw. Judges of the High Court, they retire at the age of 62 years. There is a proposal that the retirement age of judges be increased to 68 years. As they say in USA and UK, the retirement age is there is no upper limit on the retirement age. Judges of the Supreme Court of America, they decide the retirement age for themselves. There is a proverb for them, there is a maxim, or the saying goes that there are judges in diapers, right? So in India, if they say that if there would be no upper age on the retirement age of the judges, if there would be no upper ceiling, then there would be judges in coffins, because there is no culture in India as such where people retire, where a person, government employees, they do not choose their own, they would never choose their own retirement age because they would never want to retire, and hence the saying comes in India that there would be judges in coffins, right? Judges जो है फिर रिटायर ही नहीं होंगे कभी, they would never choose their retirement age. अब आते हैं रिमूवल पे। A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president. President can remove the judge, but it is a lengthy procedure. It is such a tedious and tardy process that no judge has ever been removed. The process for removal of judges is very tough. Clear? Now, passed after an address by each house of the parliament sitting individually, supported by a majority of total membership of that house and a majority of not less than 2/3 of the members of that house present and voting. A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president, passed after an address by each house of the parliament. Removal, Article 124, such address has to be presented to the president in the same session for such removal on the ground of number 1, proved misbehavior or incapacity. These are the two grounds which are mentioned in the Constitution of India. ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? क्या दो grounds हैं? What two grounds are given in the Constitution? Proved misbehavior or incapacity. Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation. Parliament may by law regulate the procedure for the presentation. अब पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, स्केलेटल फॉर्म में, ढांचे की फॉर्म में तो ये दे दिया। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट the removal of judges of not only Supreme Court but also the High Court. अगर आप
आर्टिकल 217 पढ़ोगे, जो कि मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, 217 क्लॉज 2 कहता है the judges of the high court shall be removed in the same manner as the judges of the supreme court. So if the question comes in the prelims that the process of removal of judges of the high court is the same as that of supreme court, आंसर इज यस। अगर ये क्वेश्चन आता है कि जजेस ऑफ हाई कोर्ट उसी प्रोसेस से रिमूव किए जाते हैं जिस प्रोसेस से सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिमूव किए जाते हैं, तो आंसर वुड बी यस। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस एंड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। इसी को यूज करते हुए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, जजेस इंक्वायरी एक्ट, राइट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये जो जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, ये काफी टार्डी इसमें प्रोसेस है, काफी जो है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, आर्डुअस प्रोसेस है, इसी वजह से आज तक किसी भी जज को रिमूव नहीं किया जा सका। पार्लियामेंट ने अकॉर्डिंगली आर्टिकल 124 का मैंडेट लेते हुए एनैक्ट किया जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 टू रेगुलेट द प्रोसीजर for the investigation and proof of misbehavior or incapacity of a judge of the Supreme Court. Parliament has accordingly enacted Judges Inquiry Act and proof of the misbehavior or incapacity of a judge of the Supreme Court or of the High Court, and for the presentation of an address by the Parliament to the President. ठीक है? Okay, 218, we'll talk about that. Now, removal procedure may be initiated in either house of the parliament. Process of removal of the judge can be initiated in either Lok Sabha or Rajya Sabha. Right, state legislative assemblies do not have any say in the removal of either the judges of the Supreme Court or judges of the High Court. Right, state legislative assembly के पास कोई power नहीं है। Clear? A notice of motion for presenting an address to the president praying for the removal of a judge should be signed by number 1, not less than 100 members of Lok Sabha or by not less than 50 members of Rajya Sabha. A notice of a motion for presenting an address to the president praying for removal of a judge should be signed by not less than 100 members of Lok Sabha और by not less than 50 members of राज्य सभा। अगर मोशन को इंट्रोड्यूस करना है, हमने ये समझा था कि मोशंस क्या होती हैं, अगर जज को रिमूव करने के लिए कोई प्रस्ताव है तो वो लोकसभा में पहले 100 एमपीज, लोकसभा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। पहले लोकसभा के मेंबर्स उसे प्रस्ताव को स्पीकर के पास या चेयरपर्सन के पास, लोकसभा में करना है तो लोकसभा, राज्यसभा में करना है तो राज्यसभा में उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। राइट, राज्यसभा में कितने 50 एमपीज ऑफ राज्यसभा विल सेंड इट टू दी राज्यसभा चेयरपर्सन। अभी ऐसा हुआ था रिसेंटली, बहुत रिसेंटली ऐसा हुआ था कि राज्यसभा चेयरपर्सन के पास जस्टिस दीपक मिश्रा को रिमूव करने के लिए कांग्रेस के कपिल सिब्बल, राज्यसभा में जो कांग्रेस के लीडर हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कांग्रेस के एमपीज की ये लिस्ट जो है किसके सामने रखी, राज्यसभा चेयरपर्सन के सामने रखी, जिसपे 50 एमपीज के सिग्नेचर्स थे। ठीक है, तो इन्होंने प्रस्ताव रखा। अब जब ये प्रपोजल, जब ये मोशन राज्यसभा चेयरपर्सन के पास जाता है साइंड बाय 50 एमपीज, signed by 50 MPs, तो it is up to the chairperson to accept or reject. chairperson अगर accept करते हैं तो ठीक है, accept or reject without even referring it to ethics committee or any other committee. ठीक है, अब चेयरपर्सन राज्यसभा ने क्या किया, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, जुडिशरी और पॉलिटिकल क्लास के बीच में एक सांठ गांठ चल रही है। जुडिशरी जो बाइक पे सवार है, वो वाला जो फिनोमिना चल रहा है, उस वजह से आरएस चेयरपर्सन कौन है, वेंकैया नायडू, वो अभी तक बीजेपी के चोले से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राइट, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ जो मोशन लाया गया उसमें 3 ग्राउंड्स दिए गए। 3 ग्राउंड्स क्या दिए गए थे
क्या 3 ग्राउंड्स दिए गए थे? ग्राउंड्स ये थे कि एक तो 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये कहा कि 4 सीनियर मोस्ट जजेस दे एलिजेड दैट सीजेआई दीपक मिश्रा इज whimsically is fancifully allocating the constitutional cases to junior judges. Deepak Mishra he was allocating cases to junior judges, relatively junior judges, even as senior judges, those who are a part of 4 senior most judges who are a part of collegium are sitting idle. ठीक है, जो ताऊ हैं वो वेल्ले बैठे हैं और जो चाचा हैं उनको शादी में बुलाया जा रहा है। ताऊ जी को रस्म रिवाज पूरी नहीं करने दिए जा रहे, कितना बुरा लगेगा ताऊ जी को। तो इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने ये कहा कि इन्होंने दीपक मिश्रा को एक लेटर लिखा है, ठीक वैसा ही लेटर जैसा अभी अभी जगन मोहन रेड्डी ने हाल फिलहाल के दिनों में हमारे सीजेआई को लिखा है। सीजेआई उस लेटर पे बैठ गए। इन्होंने दीपक मिश्रा को यह कहा कि आप मास्टर ऑफ द रोस्टर की हैसियत से, मास्टर ऑफ द रोस्टर क्या होता है? जैसे प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल और कॉलेज डिसाइड्स दैट हु विल बी द क्लास टीचर फॉर विच सब्जेक्ट, हु विल बी टीचिंग, विच टीचर विल बी टीचिंग विच सब्जेक्ट। मास्टर ऑफ द रोस्टर यानी कि ये रोस्टर रेडी होता है, इस रोस्टर में लिखा होता है केस क्या है और किसको एलोकेट किया जा रहा है। केस और एलोकेशन सीजेआई ये डिसाइड करते हैं, केस किसको अलॉट किया जाएगा। मास्टर ऑफ द रोस्टर सीजेआई को लिखा गया है हमारे जजेस, हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसके तहत। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर फंक्शन को दीपक मिश्रा अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहे, इसके लिए पहले सीनियर मोस्ट जजेस ने एक लेटर लिखा दीपक मिश्रा को। दीपक मिश्रा ने उसको नजरअंदाज कर दिया। दूसरा जो बड़ा एलिगेशन है, ये तो एलिगेशन नंबर 1 है, दूसरा जो बड़ा एलिगेशन है वो ये है, द सेकेंड एलिगेशन वाज कॉलेज ब्राइबरी केस। कॉलेज ब्राइबरी केस में एक ऐसे एलिगेशन सीजेआई के ऊपर लगाए गए कि एक ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज ने एक कॉन्ड्यूट एक्ट करते हुए, मिडिल मैन बनते हुए यूपी में किसी कॉलेज का केस सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2, कोर्ट रूम नंबर 2 के सामने आना था। सीजेआई ने उस केस को किसी और को असाइन कर दिया और ये एलिगेशंस थे सीजेआई पे कि सीजेआई का खुद का नाम, एलिगेशंस थे सीजेआई दीपक मिश्रा का खुद का नाम इसमें इंक्लूडेड था। तो सीजेआई ने वो केस कोर्ट नंबर 2 से कोर्ट नंबर 3 से लेके जो कोर्ट नंबर 2 को दे दिया। कोर्ट नंबर 2 में वही जूनियर जजेस थे जो सीनियर जजेस ने ये कहा था कि जिनको दीपक मिश्रा के जो लाडले जजेस हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उन जजेस का, उस टाइम पे नाम भी चल रहा था काफी ज्यादा। तो सीजेआई ने जानबूझ के, और सीजेआई हिमसेल्फ बिकेम वन ऑफ द जजेस ऑन दैट बेंचेस, यानी कि सीजेआई सैट इन द जजमेंट टू हियर द केस ऑफ ब्राइबरी अगेंस्ट हिमसेल्फ। रिमेंबर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रंजन गोगोई। सीजेआई दीपक मिश्रा के बारे में हम बात कर रहे हैं जो रंजन गोगोई से पहले वाले जज सीजेआई थे। उन्होंने भी ऐसा ही किया कि मैं ही वकील, मैं ही जज, चल ले पज। समझ में आया? पंजाबी में जो बोलते हैं, फैसला मैंने खुद ने अपने केस में कर दिया। तो ये क्या है? आर दीज 2 ग्राउंड्स, कैन दीज 2 इंसिडेंट्स बी कंसिडर्ड एज प्रूव्ड मिसबिहेवियर? यस, प्रूव्ड मिसबिहेवियर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म। सो ये तो जानबूझ के अपने केस में अपनी ओहदे का मिसयूज है, अपनी पोजीशन का मिसयूज है। इसीलिए कांग्रेस ने राज्यसभा में 50 एमपीज के सिग्नेचर्स लेके ये मोशन इंट्रोड्यूस किया, जो कि राज्यसभा के चेयरपर्सन बीजेपी के जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे, जो कि पहले मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट रह चुके हैं, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया। अब जब उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया तो यह पूछा गया कि सीजेआई ने इसे रिजेक्ट क्यों किया गया। जब उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया राज्यसभा चेयरपर्सन की हैसियत से, तो यह पूछा कि रिजेक्ट क्यों किया। राज्यसभा चेयरपर्सन के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए और फिर राज्यसभा चेयरपर्सन की ये पावर पे दोबारा से कमेंट्री स्टार्ट हो गई, एडिटोरियल्स और ये सब स्टार्ट हो गए कि क्या राज्यसभा चेयरपर्सन इंडिविजुअली कैपेबल है, क्या उनकी जॉब सिर्फ इतनी नहीं है कि वो प्रोसीजरल कंप्लायंस देखें कि इन 50 एमपीज ने साइन किए हैं या नहीं। वहां पे उन्हें रुक जाना चाहिए, उसके बियॉन्ड उन्हें नहीं जाना चाहिए, है ना, क्योंकि उसके लिए बाकी के लिए कमेटी ऑफ एथिक्स और ये सब बनाया गया है। और
कमेटी ऑफ एथिक्स भी छोड़ दो, बाकी चीजों के लिए कि उसमें मेरिट है या नहीं, आगे जो मैं प्रोसेस समझा रहा हूं उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि बाकी चीजों के लिए तो हमने एक पूरा प्रोसेस इसका है। पूरा प्रोसेस में क्या है, राज्यसभा में 50 एमपीज ने साइन किया, ठीक है। 50 एमपीज के साइन करने के बाद ये प्रपोजल राज्यसभा चेयरपर्सन के पास गया। राज्यसभा चेयरपर्सन के पास ये प्रपोजल जाने के बाद राज्यसभा चेयरपर्सन अगर इसे अप्रूव कर देते हैं, मोशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर मोशन इज वोटेड अपॉन बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। अब जब यहां पे स्पेशल मेजॉरिटी का प्रोविजन दे रखा है तो इस पे वोटिंग होगी 2/3 ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। 50% दोनों चीजें पूरी होंगी ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है ना। दोनों चीजें कल मैंने समझाई थी। जब एक हाउस, जिस हाउस में ये इंट्रोड्यूस किया गया है, हाउस नंबर 1 हम उसे कह रहे हैं, ठीक है, हाउस नंबर 1 जहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया है, जब ये हाउस पास कर देता है तो ये दूसरे यहां पे प्रपोजल चली जाती है, दूसरे हाउस में प्रपोजल जाती है, तो यहां के स्पीकर इस मोशन को एडमिट करते हैं, ठीक है। और फिर इस मोशन को एडमिट करा जाता है, फिर इसके लिए 3 मेंबर कमेटी बनाई जाती है जिसमें जुडिशरी के जजेस भी होते हैं। ये कमेटी करती है इंक्वायरी, ठीक है, ENQUIRY। ये कमेटी इंक्वायरी करती है कि क्या जो एलिगेशंस हैं, दिस कमेटी इंक्वायर्स इनटू द एलिगेशंस अगेंस्ट द जज, कि क्या जो एलिगेशंस हैं वो सब्सटैंटिव हैं, क्या उन एलिगेशंस में कुछ अर्थार्थ है, सब्सटेंस है, या फिर वो ऐसे ही हैं। जब ये एलिगेशंस आ जाते हैं, कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, फिर उसके बाद लोकसभा में भी स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होगी, लोकसभा मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी से इसे पास करेगी। जब लोकसभा इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करती है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, सेम एज इन केस ऑफ राज्यसभा, फिर उसके बाद 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। समझ में आया? 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। जब ये मोशन पास हो जाता है, फिर ये चीज प्रेसिडेंट के पास जाती है। स्टेप नंबर 3, लास्ट स्टेप, ठीक है। मैं अगर स्टेप नंबर 3 इसको वैसे लिख रहा हूं, 1 2 3 स्टेप है, प्रेसिडेंट फिर एक नोटिफिकेशन इशू करते हैं एंड द जज स्टैंड्स रिमूव्ड। दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। अब तुम्हें याद कराने के लिए स्टेप नंबर 1, मोशन साइंड बाय 50 एमपीज। कलर चेंज कर लेता हूं तुम्हें नंबर्स ताकि आसानी से दिख जाएं, ठीक है। स्टेप नंबर 1, मोशन। अब मोशन इंट्रोड्यूस हुई, स्पीकर में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्टेड, ठीक है। स्टेप नंबर 2 इसको ले लेते हैं, एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग। स्टेप नंबर 3, पैसेज ऑफ द मोशन बाय फर्स्ट हाउस, पैसेज ऑफ द मोशन बाय द फर्स्ट हाउस, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4, एक्सेप्टेंस, स्पीकर एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर स्पीकर विल पुट दिस मोशन टू वोट इन द सेकंड हाउस। स्टेप नंबर 4, सेकंड हाउस में बिल आ चुका है, बिल इन द सेकंड हाउस, पुटिंग द मोशन टू वोट। क्लियर? स्टेप नंबर 4। फिर उसके बाद 3 मेंबर कमेटी स्पीकर बनाते हैं। 3 मेंबर कमेटी में जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, ये डिटेल्स में आगे पढ़ाऊंगा, जुडिशियल मेंबर्स भी इसमें होते हैं, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4 इसी को ही मान लो, पुटिंग द मोशन टू वोट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पेशल कमेटी। कमेटी इन्वेस्टिगेट्स इनटू द चार्जेस। 5th, कमेटी के चार्जेस एडमिट करने के बाद अगर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं, 6 नंबर स्टेप, पैसेज ऑफ बिल, पैसेज ऑफ द मोशन बाय लोकसभा बाय स्पेशल मेजॉरिटी। स्टेप नंबर 7 एंड लास्ट, रिमूवल ऑफ अ जज, इशू ऑफ नोटिफिकेशन टू रिमूव द जज। थोड़ा सा इसे रिवाइज कर लो, तुम लोगों को याद हो जाएगा, फिर आगे चलते हैं।
राइट। अब मेरा एनालिसिस ये कहता है, या न्यूज़पेपर में जो चीजें उस टाइम पे चल रही थी, एनालिसिस ये कहता है कि व्हेन देयर इज अ प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मेरिट ऑफ द चार्जेस, व्हेन देयर इज एन इन्वेस्टिगेशन टू मेरिट द चार्जेस, when there is a process to investigate the merit of the charges, how justified these charges or allegations are, do you think that chairperson Rajya Sabha, if the motion is introduced in Rajya Sabha, or Speaker Lok Sabha, in case the motion is introduced in this Lok Sabha, has any right to reject the motion prima facie? ऑन द फेस ऑफ इट इसको रिजेक्ट करने का कोई मतलब बनता है? जब पूरा प्रोसेस दे रखा है इंक्वायरी का, क्या एक सिंगल पर्सन अपनी सब्जेक्टिव जजमेंट के आधार पे 50 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा या 100 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अगर मोशन लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए तो 100 मेंबर्स उनके द्वारा साइन की गई एक मोशन को ऐसे ही रिजेक्ट कर देगा? तो फिर ये प्रोसेस किस काम का? If Rajya Sabha chairperson rejects the motion, then motion dies. If he rejects, then it is dead. तो फिर आगे नहीं बढ़ेगा प्रोसेस, फिर जज को रिमूव नहीं किया जा सकता। तो द पॉइंट इज, एक इंडिविजुअल उसको ये कैसे पता कि ये जज ईमानदार है या ये एलिगेशंस बेसलेस हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ओपोजिशन पार्टी ने इंट्रोड्यूस किए हैं? राज्यसभा के चेयरपर्सन वेंकैया नायडू ने इनको रिजेक्ट कर दिया और वो मोशन दीपक मिश्रा के खिलाफ आगे नहीं बढ़ा और दीपक मिश्रा रिटायर हो गए। जब ये प्रोसेस, तो एनालिस्ट्स का ये कहना है, जिन्होंने वेंकैया नायडू को क्रिटिसाइज किया, उनका ये कहना है कि वेंकैया नायडू इज बीइंग बायस्ड हियर, राइट? तो उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, बिकॉज आफ्टर ऑल ही इज एट बेस्ट एन इंडिविजुअल। अब वेंकैया नायडू के जो प्रोपोनेंट्स थे, जो उनकी फेवर में कह रहे थे कि हाँ चेयरपर्सन या लोकसभा स्पीकर के पास ये प्राइमा फेसाई रिजेक्ट करने की पावर है कि प्राइमा फेसाई द एलिगेशन सीम्स टू बी बेसलेस एंड if we proceed ahead with this motion, this will further tarnish the image of judiciary. On the basis of this ground, अगर इस आधार पे राज्यसभा चेयरपर्सन को यह लगता है कि इससे जुडिशरी की छवि, जुडिशरी की इमेज और खराब हो सकती है, तो उस बेसिस पे राज्यसभा के चेयरपर्सन, यदि मोशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो रिजेक्ट कर सकते हैं, और लोकसभा के स्पीकर यदि मोशन लोकसभा में लाया जाता है तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। जो इसको जस्टिफाई करने वाले हैं उनका यह कहना है कि हाँ, स्पीकर और चेयरपर्सन के ऊपर यह ड्यूटी है कि जुडिशरी की छवि को बचाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। तो माय पॉइंट इज, जुडिशरी की छवि तो यहीं पे खराब हो गई। क्या न्यूज़पेपर में नहीं आया होगा कि जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ बुझम, दीपक जो उनका नाम था, उसके खिलाफ बुझाने वाली, जुडिशरी की छवि खराब करने के एलिगेशंस लग चुके हैं। एलिगेशंस आर मोर डैमेजिंग वंस दे कम इनटू द पब्लिक। वंस द एलिगेशंस हैव कम इनटू द पब्लिक, लेट द इंक्वायरी हैपन, let the truth, if there is any, come out. Once the truth comes out, the damage that has been done by the allegation, by the motion to remove the CJI or any judge for that matter, that damage would be undone to some extent. वो damage कम हो जाएगी, है ना? No, party whip is applicable to such motion. Yes. समझ में आया? तो ये क्या है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के बीच में हैंड इन ग्लव चल रहा है। राज्यसभा के चेयरपर्सन भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो इन्हीं कंसीडरेशंस पे ये एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर दिया जाता है। आगे चलते हैं। मोशन में भी एडमिटेड। अब अगर सेम प्रोसेस ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए और फिर राज्यसभा में भेजा जाए। सेम प्रोसेस, फिर इधर वाला इधर आ जाएगा और इधर वाला इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर राज्यसभा चेयरपर्सन विल कॉन्स्टिट्यूट अ 3 मेंबर कमेटी। क्लियर? अब बस लोकसभा में क्योंकि एमपीज की स्ट्रेंथ मोर देन डबल है, तो 100 एमपीज चाहिए होते हैं अगर आपको लोकसभा में ये मोशन इंट्रोड्यूस करना है। क्लियर? राज्यसभा में आसान है, राज्यसभा में 50 एमपीज
बट आसान क्या है, 245 में से 50 गैदर करना उतना ही मुश्किल है जितना 545 में 100, राइट? Motion may be admitted or rejected by the speaker or chairperson if it is found to be, if it is presented in the either house, if the motion is presented in both the houses. Investigation: if the motion is admitted, speaker or chairperson should constitute a 3-member committee for making an investigation into the grounds on which removal of a judge is asked for. Committee consisting of three members, of whom one shall be chosen from among the chief justices and other judges of the Supreme Court. ठीक है, one shall be chosen from among the chief justices of high courts and one shall be person who in the opinion of speaker or chairperson is a distinguished jurist. तो इसमें distinguished jurist होते हैं, एक तो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही हो सकते हैं, जूनियर जज नहीं हो सकते, ठीक है? तो इन तीनों की एक कमेटी बनाई जाती है, फिर कमेटी चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है, कमेटी चार्जेस को फ्रेम करती है, पैराफ्रेज करती है एब्सोल्यूट टर्म्स में कि ले दे के चार्ज क्या है जज के ऊपर। कमेटी शैल फ्रेम डेफिनेट चार्जेस अगेंस्ट द जजेस ऑन द बेसिस ऑफ विच द इन्वेस्टिगेशन इज प्रपोज्ड टू बी हेल्ड। और जज को एक सुनवाई का मौका भी दिया जाता है, स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की जाती है जज की, and he shall be given reasonable opportunity of presenting a reasonable statement of defense within such time as may be specified in this behalf by the committee. If the allegations of physical or mental capacity are there, then committee shall arrange for special examination by medical board. Yes, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा तो स्पीकर विल डिसाइड कि क्या उनको रिमूव किया जाना चाहिए या नहीं। गॉट इट? द कमिटी में अमेंड द चार्जेस बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय मेडिकल बोर्ड, इन विच केस द जज शैल बी गिवन अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंस आफ्टर द मोशन इज पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी and then the address is presented to the president for the removal of the judge. Finally, president passes an order removing the judge. आज तक इंडिया में ऐसा नहीं हो पाया। क्लियर है? पढ़ लो थोड़ा सा, प्लीज रीड इट वंस। Done. Judges Inquiry Act carries the detailed provisions related to removal of a judge. Done guys? चलो आगे। कमेटी में अमेंड दी चार्जेस बेस्ड ऑन द रिपोर्ट बाय, ये भी हो गया। सैलरीज, अब आते हैं आर्टिकल 125 पे, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस ऑफ द जजेस। Salaries, allowances, privileges, leave and pension of the judges of the Supreme Court are determined from time to time by the Parliament. They cannot be varied to their disadvantage after their appointment. Judges की सैलरी बाद में चेंज नहीं करी जा सकती, लेकिन हम जब इमरजेंसी कवर कर रहे थे तो हमने ये समझा था कि जजेस की सैलरी बाद में चेंज भी हो सकती है, राइट? कब हो सकती है चेंज? जब इमरजेंसी लगी हो। ठीक है? यस, साकेत मजे ले रहे हो? हाँ, देखो ये अब क्रिमिनल हो गया, ये सारा कुछ लिखना बोलना है ना, तो थोड़ा ध्यान से। हम एक
नई तरह की इमरजेंसी में है। क्या? चुप रहो इमरजेंसी। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? प्लीज आंसर दिस 2012। While appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the CJI. Supreme Court judges can be removed by CJI only. Salaries of judges are charged on the Consolidated Fund of India? Yes. To which legislature does not have to vote. Right? Supreme Court of Judges, ये तो गलत हो गया, ठीक है। While appointing the Supreme Court judges, President of India has to consult CJI, ये तो ठीक है, yes, ठीक है। All appointments fourth is wrong, ठीक है। तो आंसर हो गया 1 and 3। क्लियर है गाइस? आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 1 and 3। Appointment of acting Chief Justice. President may appoint one of the other judges of the court as acting Chief Justice when the office of CJI of India is vacant, when the Chief Justice is by the reason of absence or otherwise unable to perform the duties of his office. Right? Acting Chief Justice. Appointment of ad hoc judges. इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। Chief Justice of India may, with the advance consent of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge for such period as may be necessary to constitute the quorum of the Supreme Court to hold or continue any session of the court. Chief Justice of India may, with the prior approval of the President and after consultation with the Chief Justice of the High Court concerned, request in writing the attendance at the sittings of the court as an ad hoc judge. इसको नॉर्मली 2 साल के लिए लगाया जाता है ad hoc जज को, तो बाद में इन्हें ना अप्रूव कर दिया जाता है, 2 साल बच जाते हैं 100 साल, कम से कम 9 साल तो बन ही जाते हैं। ad hoc जजेस परमानेंट जजेस बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो सवाल ये उठता है एड हॉक जजेस को प्रमोट करने के लिए वो सारा प्रोसेस वगैरह नहीं फॉलो करना पड़ता जो नॉर्मल प्रोसेस को फॉलो करने के लिए करना पड़ता है। क्लियर? जो नॉर्मल जज को अपॉइंट करने के लिए प्रोसेस, अब क्या होता है जैसे किसी का कोई नेपोटिज्म है, भैया भाईचारा जो भी बोलते हैं, ठीक है, भैया चाचा, जो भाई चाचा वाला जो सिस्टम है कि वो उसको किसी जज को प्रमोट करना है, तो सेफ तरीका ये है पहले उसे एड हॉक जज लगाओ ये बोल के कि उस हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में केसेस की पेनाल्टी या केसेस की पेंडेंसी या वर्कलोड बहुत ज्यादा है, और फिर उसे फाइनली रेगुलराइज कर दो, ठीक है। तो ये जो दिक्कत है इसके खिलाफ कमेंटेटर्स एजी नूरानी जो कि जूरिस्ट हैं, एमिनेंट जूरिस्ट हैं, उनकी जो बुक्स लिखी गई हैं इनकी, ऐसे लोगों की, उन्होंने ये सब इसको क्रिटिसाइज किया है। द जज सो अपॉइंटेड शुड बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज। क्वालिफिकेशन ठीक है बट मेरिट को डिसरिगार्ड कर दिया जाता है। होता क्या है, ये बोला जाता है कि मेरिटोरियस जजेस बैठे रह जाते हैं और बोला जाता है कि जज क्वालिफाइड है, अभी के लिए इसको हाल फिलहाल के लिए लगाया है। मेरिटोरियस जज जब ये पीआईएल या आरटीआई फाइल करता है कि मुझे क्यों नहीं लगाया, तो उसको बोला जाता है आपका नाम तो परमानेंट जजेस में आएगा, आपका नंबर आएगा राइट। उतने में क्या होता है, वो जो मेरिटोरियस जज है जो हाई कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट प्रमोट होने वाला था, उसे ऊपर ही नहीं आने दिया जाता। क्यों? क्योंकि एड हॉक जजेस की भर्ती करके टाइम निकाल दिया जाता है, भैया भतीजावाद, राइट, जो भी है, ठीक है।
It shall be the duty of the judge so appointed to attend the sittings of the Supreme Court in priority to other duties of his office. While so attending, he enjoys all the jurisdictions, powers, and he should discharge all the duties of a judge of the Supreme Court. Clear? Ad hoc judges 127. ये 10 नंबरी जजेस हैं, समझ रहे हो? 127 कैसे याद रखोगे? 1 2 7 कितना होता है? 10 होता है। 10 नंबरी जजेस हैं ये, समझ रहे हो? 10 नंबरी। While so attending, तो सारी पावर्स मिल जाती हैं। जो हाई कोर्ट के लेवल के जजेस हैं, जो अपॉइंट हो सकते थे, ये कहा जाता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में टाइम नहीं है, केसेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के तहत 4 सीनियर मोस्ट जजेस और कॉलेजियम के तहत जजेस को अपॉइंट करने में टाइम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एड हॉक जज लगा देते हैं। हम लगा रहे हैं 1-1.5 साल के लिए, जैसे ही टाइम मिलेगा, केसेस कम होंगे, थोड़ा बर्डन कम होगा, हम तब हाई कोर्ट के जजेस को ऊपर प्रमोट करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस 3 साल यूं ही निकल जाते हैं, हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं। एड हॉक जजेस को लगाने के लिए प्रेसिडेंट यानी कि जो उस समय की सरकार होती है, वो भी हैंड इन ग्लव होती है, हाथों में हाथ मिला के दोनों चलते हैं। कैसे? जो इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, जैसे कोई मंदिर बनाना है, मस्जिद बनवाना है, वो सब केसेस के टाइम पे नीचे के जज आएंगे, KM जोसेफ जैसे, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? वो सुनेंगे नहीं, इसलिए ऐसे जजेस से जुडिशरी को पैक कर दिया जाता है। और फिर जो मनमाने केसेस हैं, आधार को अप्रूव करवाना है या किसी और को अप्रूव करवाना है कोई ऐसे केस को, तो वो काम हो जाता है। समझ में आया? अब अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जजेस। Chief Justice of India may at any time with the previous consent of the President require any person to sit and act as a judge of the Supreme Court who has held the office of a judge of the Supreme Court or of the Federal Court. ठीक है, जो पहले से जज रह चुका है सुप्रीम कोर्ट का, उसको जज लगाया जा सकता है। और who has, और सेकंड पॉइंट कि रिटायर्ड जज को भी अटेंडेंस के लिए कहा जा सकता है। और who has held the office of a judge of the High Court and is duly qualified for the appointment of the judge of the Supreme Court. Every such person shall be entitled to such allowances or salary remuneration as the President may by order determine for such period. ठीक है, he shall have all the jurisdiction, power and privileges, but shall not otherwise be deemed to be a judge of the court. तो यहां पे तुम्हें एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में लेजिटिमेटली उठना चाहिए, ये बाद में आते हैं इस पे। लेजिटिमेट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में ये उठना चाहिए कि ये नीचे के लेवल पे जजेस जो हैं, उनको क्यों नहीं जो है अपॉइंट किया जाता? उनको अपॉइंट करो भाई। ये ऊपर के लेवल पे क्या है, ये जजेस आपस में, ये सुप्रीम कोर्ट है मान लो, ये आपस में क्यों खेले जा रहे हैं कि इनको अपॉइंट कर दो? हाई कोर्ट के जजेस जो हैंड पिक करके क्रेन से उठवा लिए गए हैं उनको ले लो। क्यों ना इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो मेरिटोरियस जजेस हैं वही अपॉइंट होंगे। ये शॉर्ट सर्किट क्यों है? 126 का 127 के जो शॉर्टकट्स हैं वो क्यों हैं, है ना? यहां पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस या सबऑर्डिनेट जुडिशरी के जो एग्जाम्स हैं वो प्रॉपर सबऑर्डिनेट जुडिशरी का जो एग्जाम है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 10 मई का 9 मई 2017 का न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बाय सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर चेक करना टाइम्स ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि लोअर कोर्ट लेवल पे जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है दैट इज रिडन विद नेपोटिज्म। ठीक है, इस वजह से एक जज को 90 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, दिल्ली के कोर्ट के जज थे वो। तो इसलिए यहां पे ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देयर इज अ नीड टू क्रिएट ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, तो उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट किया जाए और यहां के जजेस ऊपर अपॉइंट होंगे जो मेरिटोरियस होंगे। यहां पे वैकेंसीज कम होंगी तो केसेस की पेंडेंसी कम होगी, केसेस की पेंडेंसी कम होगी तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्री में अच्छा होगा, लोग कानून की पालना करेंगे। ठीक है, ये सारा कुछ होगा तो फिर चीजें ऊपर जाएंगी, फिर ऊपर अच्छे जज जाएंगे, ऊपर अच्छे जज जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी होगी। कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला जज, कोई नीट एंड क्लीन कैरेक्टर वाले जज ही ऊपर जाएंगे। बदनाम होने वाले बाद में जो जुडिशरी की और अपनी बीवी की, अपने घर की नाक कटवाएं, ऐसे जजेस ऊपर नहीं जाएंगे, है ना?
तो ये सारी चीजें जो है, कल्चर ऑफ शेमलेसनेस विल बी रिप्लेस्ड बाय कल्चर ऑफ लॉफुलनेस। जब जजेस एग्जाम्पल सेटर्स होने चाहिए, रोल मॉडल्स होने चाहिए, ये सारा कुछ करने की जरूरत है। ये लोग पता क्या कर रहे हैं, ऊपर ही गोल गोल घूमते रहो, जो रिटायर हो गया उसको दोबारा लगा दो। फिर प्रपोजल्स भी ऐसी ऐसी आती है कि जजेस जो इनकम्बेंट हैं उनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा दो, 65 से 68 कर दो, है ना। वो ऊपर ज्यादा से ज्यादा ये इस सर्कल को मिला लेते, थोड़ा बहुत जो थोड़े से कनेक्टेड जजेस हैं चापलूस टाइप के, उनको इंक्लूड कर लिया। इससे नीचे के जो जजेस हैं जो थोड़े ईमानदार हैं वो यहीं पे रह जाते हैं, राइट, उनको ऊपर नहीं उठने दिया जाता। तो इनमें भी बीपीएल और एपीएल बनी हुई है, बिलो पॉवर्टी लाइन जजेस हैं और अबव पॉवर्टी लाइन जजेस हैं, राइट। ये पॉवर्टी बस ये है बिलो पावर लाइन अबव पावर लाइन, समझ में आया। जो पावर यानी कि मिनिस्ट्री से कनेक्टेड है, सरकार से कनेक्टेड है, रूलिंग पार्टी से कनेक्टेड है। अबव पावर लाइन, बिलो पावर लाइन, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। लिख मत आना इसको, पता लगा तुम पावरलेस हो गए। समझ में आया? ये था एनालिसिस थोड़ा बहुत। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ कोर्ट ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर टू पनिश फॉर कॉन्टेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। A court whose proceedings are recorded and available as evidence of fact. The fact that we in India have got integrated judiciary, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट क्या बनता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बनता है, ठीक है। Just 1 minute, guys. The fact that we've got integrated judiciary in India, उस वजह से हमारे सिस्टम में क्या हो गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट बन जाता है। जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट are cited as a record. They have got a citational value in high courts. When I say that they have got a citational value, cite करोगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, तो हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को लॉ मानते हुए कॉन्कर करना पड़ेगा। सभी हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट 1, हाई कोर्ट 2, हाई कोर्ट 28, सभी हाई कोर्ट्स को, हाई कोर्ट 24, ठीक है, सभी हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार मानना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक जजमेंट दे दिया है तो दैट इज द सोर्स ऑफ लॉ फॉर द हाई कोर्ट्स, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, राइट, सोर्स ऑफ लॉ। ऑल दी जो एडवोकेट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि हाई कोर्ट में जो एडवोकेट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये जजमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो लॉ है अपने आप में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जजेस हैं। इसके पीछे लॉजिक ये है कि दी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर कंसिडर्ड टू बी लर्नेड, बेटर लर्नेड देन हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो वो लोग पहले से सीनियर हैं, तो अब सीनियर की जजमेंट को मानना एक कानून है यहां पे, समझ में आया? क्लियर है? एनीबडी फ्रॉम हरियाणा नियर सोनीपत, पानीपत? Karnal especially, has the highway been blocked or what? Has the highway been blocked or what? जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, एक्चुअली माय मदर इज ऑन द वे रोहतक के पास, ओके। फार्मर्स प्रोटेस्ट की वजह से, एनीवेज, साइटेशनल वैल्यू का मतलब समझ में आ गया?
so this is there. Now she was actually coming by road और हाईवे जाम होने की वजह से it's been like 1 hour now. Anyway, we'll rush after the class. So हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में भी जो लोअर कोर्ट होता है, जैसे जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट्स पंजाब एंड हरियाणा में, चलो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया, मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद बेंच जो है उसकी जजमेंट्स, यूपी का जो हाई कोर्ट है उसकी जजमेंट्स यूपी के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो साइड करी जा सकती है। अगर जज से, मैं एक लॉयर हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुवक्किल यानी कि मेरी जो पार्टी है जिसको मैं डिफेंड कर रहा हूं, अगर मैं ये कहता हूं कि मिलॉर्ड, सबऑर्डिनेट जज को ये कहता हूं कि मिलॉर्ड आपको ये जजमेंट देखना पड़ेगा, आप हाई कोर्ट की जजमेंट के अनुकूल ही अपनी जजमेंट दे सकते हो। लेकिन अगर दूसरा वकील ये कहता है, मेरा जो ओपोनेंट है वो ये कहता है कि आप तो हाई कोर्ट की जजमेंट साइड कर रहे हो लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उल्टा कहती है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मिलॉर्ड आपको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से चलना होगा। तो सबऑर्डिनेट जज को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से चलना होगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, इट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, अगर कोई ऐसा वैक्यूम हो कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट ऐसे इश्यू पे नहीं आई है, तो हाई कोर्ट की जजमेंट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉ बाय द सबऑर्डिनेट कोर्ट and judgment will be given in accordance with the previous judgments of the high court. Yes, this is called as precedential value. precedent मतलब पिछला example, case law, ठीक है, PRECEDENT, समझ में आया? अगर राजस्थान हाई कोर्ट की कोई जजमेंट है और केस चल रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो क्या मैं राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट में, अगर मैं यूपी में एक लॉयर हूं, एडवोकेट हूं, तो क्या मैं राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट को सबऑर्डिनेट कोर्ट के सामने ये कह सकता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मिलॉर्ड देखो राजस्थान हाई कोर्ट ने ऐसा कहा था? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के ऊपर राजस्थान हाई कोर्ट की जजमेंट बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलाहाबाद यूपी में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट मैं वहां पे साइड करता हूं, तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। यानी कि हाई कोर्ट उस हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आने वाले सभी कोर्ट्स के ऊपर उस हाई कोर्ट की जजमेंट एप्लीकेबल होती है, उनको उसी के अनुकूल अपनी जजमेंट देनी होती है। लेकिन बाकी हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स सिर्फ एक परसुएसिव वैल्यू होती है। परसुएसिव मतलब जज के ऊपर दबाव डलेगा कि हाँ राजस्थान हाईकोर्ट ने ऐसा कह रखा है, तो राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट को डिस्ट्रिक्ट जज रीड करेंगे कोई भी जजमेंट देने से पहले, बस इतना ही। लेकिन अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज ये चाहें कि राजस्थान हाईकोर्ट की जजमेंट को पूरी तरह से दरकिनार करना है, इग्नोर करना है, तो कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज दिस if it is observed in the right spirit, it leads to what? Observance of principle of judicial consistency. ठीक है, जिगजैग वेवरिंग जजमेंट्स नहीं आनी चाहिए। वेवरिंग क्या होता है? कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना। ये वाली जो जजमेंट्स होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के केस में भी ऐसा हो रहा है, राइट? क्योंकि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से जब हम वेवर करते हैं तो फिर क्या होगा, सारे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाने लगेंगे। अगर हाई कोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने एक मैटर ऑफ लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन को सेटल कर दिया है कि हाँ इस लॉ का मतलब ये है, तो वो मैटर हाई कोर्ट में सेटल तभी होगा जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की रिस्पेक्ट करेगा और उसी के अनुकूल, उसी के सिंक में जजमेंट देगा। कंसिस्टेंट जजमेंट्स आएंगी तभी ये केसेस ऊपर नहीं जाएंगे। नहीं तो फिर लोग पता क्या करेंगे, हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, चलो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज करो। तो सुप्रीम कोर्ट में ट्रैफिक
या बैकलॉग बढ़ जाएगा। इसीलिए ये प्रिंसिपल को ऑब्जर्व करने में एडवांटेजेस रहती हैं। This is leading to the observance of the concept of judicial integration, right? This is rather leading to the observance of the concept of judicial integration. ठीक है, jurisdiction of the Supreme Court, original jurisdiction, appellate jurisdiction, power of judicial review, writ jurisdiction, advisory jurisdiction, supervisory jurisdiction, control over subordinate courts, court of record। फटाफट से चलते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 131 वाले मैटर्स जो हैं, दी मैटर्स रिलेटेड टू डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट ऑफ states on the one side and one or more other states on the other, between two or more states. The dispute must involve any question, whether of law or fact, on which the existence or extent of legal rights depends. The said jurisdiction shall not extend to a dispute arising out of any treaty, agreement, covenant, engagement, sanad or other similar instrument, which having been entered into, executed before the commencement of this constitution, continues in operation after such commencement, or which provides that the said jurisdiction shall not extend to such a dispute. तो जो कोई, देखो, सेंटर और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकती है। स्टेट और स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जाएगी। स्टेट, सेंटर एंड स्टेट एंड एन अदर स्टेट, ठीक है, अगर ये भी कोई डिस्प्यूट है तो सेंटर के, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएगी। डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन विच existence or extent of legal rights depends. Water disputes, land disputes, ठीक है। The said jurisdiction, however, shall not extend to a dispute arising out of any pre-independence treaty, pre-constitution treaty, ठीक है। पहले कोई अंग्रेजों के साथ में ट्रीटी साइन करी गई थी आजादी के दौरान, उससे कोई लेना देना इस डिस्प्यूट का नहीं होना चाहिए। पहले के मैटर्स नहीं, मैटर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। गॉट इट? Now, please answer this. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its advisory jurisdiction, appellate jurisdiction, original or writ jurisdiction. अगला क्वेश्चन, ये आंसर इज C, right? Then read this question, guys. Would you be able to answer this at this stage? I think we need some more reading before we would be able to answer this.
Which of the following are included in the original jurisdiction of the Supreme Court? Dispute between the Government of India and one or more states. A dispute regarding the elections to either house of the Parliament or that of legislature of a state. A dispute between the Government of India and Union Territory. A dispute between two or more states. Select the correct answer using the codes given below. A. 1 and 2 only. B. 2 and 3 only. C. 1 and 4 only. D. 3 and 4 only. ठीक है, इसको बाद में कराता हूं मैं, अभी आंसर नहीं बता रहा हूं. एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन, चलो बताओ इसका आंसर जिनको पता है. Then, appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from the High Courts in certain cases. Article 132, civil matters. Article 133, criminal matters. Article 134, special leaves to appeal. Article 136. आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील करने के लिए इन सब आर्टिकल्स के तहत जा सकते हो. ठीक है, इसको बोला जाता है अपील. हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ अपील कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो. ठीक है, कि आप अब यहां पे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है, प्रेयर नहीं है. ओरिजिनली ये केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और चारा ही नहीं है एक्सेप्ट टू एंटरटेन दीज केसेस. एक बार तो एंटरटेन करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई और वे आउट नहीं है, क्योंकि और ये केसेस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के हैं. फिर ये केसेस जाएंगे कहां, है ना. अगर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनेगा तो ये केसेस जाएंगे कहां. वन बाय वन. अपील्स इन सर्टेन केसेस. An appeal shall lie to the Supreme Court if the High Court itself certifies that the case before the High Court involves a substantial question of law as to interpretation of this Constitution. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट खुद एक पेपर लगा देते जजमेंट के आगे कि हमने ये सारे कॉन्टूवर्स इस केस के समझे, हमारी समझ में कुछ नहीं आया, हमें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन इसमें इन्वॉल्व है जिसके लिए हम एम्पावर्ड नहीं है. हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए सक्षम नहीं है, केपेबल नहीं है. ठीक है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भेज देगा ये मैटर. Now, if you are asking matters which are excluded, these are the matters which are excluded from the original jurisdiction of the Supreme Court. Matters which do not come to the Supreme Court directly. Right? Matters in which High Court has got the concurrent power to entertain the cases, to admit these cases before itself. Those cases will be considered to be as cases not falling under original jurisdiction. Got it? ठीक है. In such a case, any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as mentioned before has been wrongly decided by the High Court or by the District Court. ठीक है, अगर हाई कोर्ट तो सीधा ही बोल देगा कि ये क्वेश्चन हमारे बस का नहीं है, और अगर हाई कोर्ट नहीं बोलता तो फिर ये हो सकता है कि हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच होता है, 2 जजेस का बेंच, उसने जजमेंट दे दी, लेकिन फिर भी लोग सहमत नहीं है, तो फिर हाई कोर्ट फिर भी अगर दोनों में से एक पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर ये चला जाएगा. राइट. Saket will talk about that. So, an appeal shall lie to the Supreme Court if the High Court certifies that the case involves अब 133, 132 और 133 that the case involves substantial question of law of general importance. कॉन्स्टिट्यूशनल है तो 132, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है तो 133. क्लियर? And
that in the opinion of the High Court, the said question needs to be decided by the Supreme Court. हाई कोर्ट की ओपिनियन में, हाई कोर्ट की राय यहां पे मैटर कर रही है, एंड यहां पे तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्विंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्वॉल्व। यहां पे लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ अगर हाई कोर्ट को लगेगा तो हाई कोर्ट देगा, हाई कोर्ट को नहीं लगता तो हाई कोर्ट नहीं देगा। ठीक है, सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल नहीं है, यहां पे सिविल मैटर्स हैं, राइट टू प्रॉपर्टी और हिंदू विमेन राइट टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एक्ट। हिंदू विमेन जो है, हिंदू महिलाएं, अभी रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था वो इसी तरह से हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए, गॉट इट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर इसी बेसिस पे दिए। जनरल इंपॉर्टेंस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि हिंदू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो विमेन राइट ऑफ डॉटर्स है, उसको अभी एम्पलीफाई किया गया है। 2003 से पहले जो डॉटर्स हैं, 2004 से पहले डॉटर्स जो हैं, उनको अपने पिता की प्रॉपर्टी में, जायदाद में कोई हक नहीं मिलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को री इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि द डेट ऑफ डेथ ऑफ द फादर और द डेट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट, गॉट इट। Clear? In criminal cases, an appeal lies to the Supreme Court if the High Court has on appeal reversed an order of acquittal of an accused person and sentenced him to death or to imprisonment for life or for a period of not less than 10 years, or has withdrawn for trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused and sentenced him to death or to imprisonment for life or for a period of not less than 10 years. Got it? तो बाकी का इसे कल कंटिन्यू करेंगे। एक बार तुम लोग इस पीपीटी से पढ़ लेना। हैव यू गाइस गॉट दिस पीपीटी 2005 से? ठीक है, वो फैक्चुअली इसको ठीक कर लेना, 2004 है शायद इन विच द एक्ट वाज पास्ड। एनीवे इफ इट इज 2005, एग्जांपल से ये क्लियर हो गया अभी के लिए? क्लियर? सो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, पीपीटी इज देयर विद यू। बाकी के आर्टिकल्स हम कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है वैसे तो। इश्यूज इन न्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी, दिस ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, वील कवर दिस टुमारो। थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीवन।